Assalamu alaikum. I am Atif Randhawa. I am lecturer at Times Institute, Multan. I am assigned for your subject biochemistry of the disease, in which we study about biochemistry, about different metabolic risks as well as other prolonged diseases. Today I will discuss about the obesity and its consequences. Obesity is nowadays a complex disease which involving an excessive amount of body fat. लाइक ओबेसिटी क्या है कि ओबेसिटी जब हम अपनी बॉडी जो आइडियल बॉडी वेट हमारा हम उससे जब अबाव जाएंगे तो हम ओबेसिटी कंडीशन में जाते हैं। और आजकल तो बहुत इशू बना हुआ है ओबेसिटी का। लाइक इसकी प्रिवेलेंस हम सबसे पहले देखेंगे कि ओबेसिटी इज अ कम्प्लेक्स डिजीज विच इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बॉडी फैट in addition to dramatically with decreasing our personal lifespan due to the other metabolic risks. There are the various health related risks including the higher risk of the obesity, heart disease, or certain types of cancer. Even pregnant women are highly compromised due to their health due to the obesity. Obesity may suffer from complications that can lead to the health problem for the mother and the children. And if we see worldwide population, the number of the obese people in the world total is approximately 1.2 to 1.3 billion, which make up approximately 30% of the world population. If we see last year over 30 million people each day died from obesity, and the worldwide obesity rate has been increasing triple even after the finding of 1990. And further we study about the obesity and the introduction of obesity, definition of obesity, and etiology, the pathology, general consequences, and the role of obesity in metabolic risk as well as in other disease, and then management of obesity. In introduction of obesity, already I discussed that obesity is a complex disease which involving excess of fat intake and which increase over body weight. More than 66% of the US adults are categorized as overweight and obese, and the prevalence of the obesity increasing rapidly in these after 1919 findings. And the children and adolescents are becoming more obese due to the current trends of food consumption, due to the high fat intake, due to the high food consumption, and due to the inactivity in the life. Obesity is associated with the increasing the risk of the multiple health problems including hypertension as well as type 2 diabetes, hyperlipidemia, hypercholesteremia, and some fatty liver diseases as well as some cognitive joints diseases and some malignancies. Thus, it is important for the physician to identify, to evaluate, to treat, to find the signs, symptoms, the etiology of the obesity and other associated conditions. First, I will discuss what is overweight, obesity, and the morbid obesity. And obesity is the state of excessive adipose tissue. कि इसमें क्या होता है कि जब हमारा एक जो नॉर्मल बॉडी फैट्स है उससे जब हम एक्सेस में जाएंगे तो हम ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। इसकी वजह से डिफरेंट किस्म के मल्टीपल डिसऑर्डर्स हम पे अटैक करते हैं। तो डिफरेंट किस्म की पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम सेट करते हैं कि आइदर कि ये जो पर्सन है जो बीस है ओबेसिटी की किस स्टेज में उस पर कौन कौन से metabolic risk affect कर सकते हैं। in which WHO defined that BMI greater than or equal to 25 is overweight, and the BMI equal or greater to 30 we consider obesity. Mostly क्या होता है कि वो अगर मेल और फीमेल का दोनों का BMI 30 है तो जो फीमेल है उनमें फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं।
देन फर्दर BMI का फार्मूला है कि वेट को हमने किलोग्राम मेजर करते हैं और उसकी हाइट को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. Then further the BMI index is classification of the weight status and not merely weight. It is emphasized that muscularity and the height is also different. इसमें होता क्या है कि BMI हम मेजर कर लेते हैं, उसकी बेस पे जो रेंजेस आती हैं मोस्टली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनमें बॉडी मसल जो है वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका साइज ऑफ जो सेल मसल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो लेकिन जब उसका BMI निकलेगा तो वो अफेक्टेड होगा कि अगर उसका एक्सेस बॉडी मास की वजह से भी हम कंसीडर इसमें कर लेते हैं कि वो ओवरवेट है या ओबेसिटी का उससे इशू है. देन न्यूट्रिशन स्टेटस है बेस्ड ऑन WHO. कुछ एशियन क्राइटेरिया है कि BMI का क्या क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू WHO एंड इन एशियन. जो अंडरवेट दोनों के इस बात फिक्स है कि जो अगर किसी का जो BMI है वो 18.5 से कम होता है तो हम उसे अंडरवेट कंसीडर करेंगे. और नॉर्मल ये कि अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया 18.5 टू 24.99 वी कंसीडर नॉर्मल एंड अकॉर्डिंग टू एशियन क्राइटेरिया 18.5 to 22.9 considered in normal as well. If a person have BMI in the range of 25 to 29.9, he is considered overweight as well. 20 in Asians 22 to 23 to 24.99 considered in overweight, and then further 40 and 40 plus consider and obesity grade 1 and obesity grade 2. वैल्यू BMI क्या है बॉडी मास इंडेक्स से. इसमें वैल्यू ऑफ द BMI है इंडिपेंडेंट एंड द सेम फॉर बॉडी बोथ ऑफ द सेक्सेस. इसमें यह है कि देखें कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो बॉडी फैट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं बजाय इसके के मेल के. लेकिन जब BMI मेजर करते हैं तो इसके अंदर ये इश्यूज आते हैं कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फैट सेल जो वुमेन में नेचुरली ज़्यादा होते हैं. देन द BMI 30 इज द थ्रेशोल्ड फॉर ओबेसिटी. if a subject have a BMI in the range of 25 to 30, we consider him medically significant. Otherwise, if he has a BMI across 30, we consider they may suffer shown in metabolic risks. Further classification and the other indexes में ब्रोका इंडेक्स है, उसमें हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करके सेपरेट किया जाता है 100 से. एंड देन इसमें कॉन्ट्रेल इंडेक्स है और देन लोरेंट्स इंडेक्स है, ये इसके फार्मूलाज हैं. देन अदर मेथड में इसकी वेट टू हिप रेशियो जो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं कि अगर किसी का वेट टू हिप रेशियो 0.9 हो फॉर जो वुमेन्स हैं उनमें हम 20 कंसिडर करते हैं. अगर मेल का 1 से प्लस हो या 1 हो तो हम उसे 20 कंसिडर करते हैं. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में ये आता है स्किन फोल्ड थिकनेस है, ठीक है. उसमें हम बाइसेप ट्राइसेप की स्किन फोल्ड थिकनेस से हम फार्मूला पुट करके उसकी मेजरमेंट लेते हैं. देन फर्दर prevalence of the obesity. I already discussed that nowadays obesity has become a major issue due to the over dietary imbalance as well as over inactivity and due to the some other diseases like in COPD and PCOS and some other diseases which cause obesity. Even low prevalence are recorded among low level of education and it in people who occupation was connected with agriculture and manual. ज़ाहिर है कि जो लोग इवन के जो रूरल एरिया में रह रहे हैं जैसे अर्बन एरिया के उनमें ओबेसिटी के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनके फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी होता है, वो नेचुरली डाइट पे होते हैं. उसके अलावा वो उनका मोस्टली डाइट है वो होल डाइट ले रहे होते हैं. और इवन जो
मोस्टली अर्बन एरिया में क्या है कि हमारी डाइट शिफ्ट हो रही है, जो रिफाइंड कार्ब हैं, रिफाइंड, हम हर चीज़ रिफाइंड ले रहे हैं, इसी वजह से। उसके अलावा हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं, इसी वजह से हमें ओबेसिटी का होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, वन इज एक एप्पल शेप्ड है, दूसरी पीयर शेप्ड है। एप्पल शेप्ड में क्या होता है कि ड्यू टू इनएक्टिविटी बॉडी के सेंटर में फैटी सेल्स कम्युलेट हो जाते हैं, जिसे हम एंड्रॉयड ओबेसिटी या एब्डोमिनल या सेंट्रल एप्पल ओबेसिटी कहेंगे। एंड देन फर्दर क्या जो गायनोकॉइड ओबेसिटी है, ये मोस्टली ये इसमें क्या होता है हमारे पूरी बॉडी पे फैट सेल जनरेट हो जाते हैं, कि ये ओवरऑल पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है। देन ओबेसिटी कैन ड्यू टू द डिपोसाइट्स हाइपरट्रॉफी एज हाइपरप्लेशिया। इसमें होता क्या है कि एक जो फैटी सेल्स हैं उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। वाई काज ओबेसिटी ड्यू टू द एनर्जी इम्बैलेंस, के हमारी जो डाइट है वो रिफाइंड पे, उसके अलावा कुछ जेनेटिक इश्यूज इवन के जिन वुमेन में के मदर्स ओबीज होंगी उनमें 70% चांस है कि उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, स्पेशली जो उसकी डॉटर होगी उसमें 70% चांसेस होंगे कि वो ओबीज हो सकती है। उसके अलावा कुछ एंडोक्राइन डिस्ट्रेसेस हैं, उसमें हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें के T3 T4 जो कंप्रोमाइज होते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं या स्पीड है वो लो हो जाती है। इसके अलावा कुछ कुशन सिंड्रोम में और PCOD या PCOS में वेट इंक्रीज होता है। कुछ ड्रग्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, कुछ सीजनल मेडिकेशन जिसके टेक करने से वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कोई इमोशनल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, अल्कोहलिज्म एज वेल एज स्मोकिंग सेशन में भी वेट इंक्रीज होता है। उसके अलावा व्हाट काज ओबेसिटी, इसमें प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज होता है। लैक ऑफ स्लीप ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एक्सेस हेल्दी फूड cause obesity. Even though genetic play an important role in cause of obesity, like कुछ कंट्रीज में, कनाडा में, अमेरिका में एज वेल इंडिया में, इनमें न्यूट्रोजेनोमिक काफ़ी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं जिसमें वो उनकी जीनोटाइप को चेंज कर देते हैं। जीन के को वो आपको देख के उसी अकॉर्डिंग आपको डाइट देंगे। इवन आपकी डाइट जो है कुछ जो जीनोटाइप को देखते हुए आपकी डाइट में वो चेंजेस करेंगे कि जो आपके जीन को फेवर करेंगे, तो फिर उससे भी आप कुछ मल्टीपल डिजीज से बच सकते हैं, एज वेल एज ओबेसिटी से बच सकते हैं। देन फर्दर कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं बॉडी में जो कि ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं। कि लाइक कुछ हमें सेंसेशन करवाएंगे कि आपने खाना लाइक खा लिए, आप फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस आ गई है, तो आप अब रोक दें। इसमें जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं वो इसमें लेप्टिन है, गैरिलिन है, एज वेल एज ऑक्सीटोसिन है। जो लेप्टिन है, लेप्टिन इज बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड in the stomach and it control appetite through its action at the hypothalamus, feeding which cause satiety। इसमें क्या है कि हाइपोथैलेमस से मैसेंजर जनरेट होता है थ्रू CNS, and the leptin is mainly produced by adipocytes to signal to the energy state of the body। इसमें क्या है, जब आपने फूड इंटेक किया है तो ये इसकी जब सेटिस्फेक्शन आपको होगी फिर तो ये जनरेट होगा, वो क्या करेगा, जो एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करेगा और इनहिबिट कर देगा हंगर को, which in turn to diminish fat storage in adipocytes। and then further is ghrelin। Ghrelin is basically a hormone also called as linomodulin। It is basically a peptide hormone which is produced mainly by ghrelinic cells होते हैं, which are not only found in jejunum but also in ileum as well as kidney and placenta में ये cells होते हैं जो कि ghrelin प्रोड्यूस करते हैं। It has recently become shown that the ghrelin is produced locally in the brain, which function as an neuropeptide in the central nervous system।
कुछ सच चीज़ नहीं है कि जो ब्रेन है उसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन सक्रीट होते हैं गैरलिन टाइप, जो क्या करता है कि जो सीनस में एक्ट एज ए न्यूरोपेप्टाइड, जो स्टिमुलेट करता है एपिटाइट को एंड इंक्रीज फूड इंटेक एंड प्रमोट फैट स्टोरेज। गैरलिन इसका इफेक्ट है। इसके अलावा बिसाइड रेगुलेशन ऑफ एपिटाइट, गैरलिन आल्सो प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन द एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये गैरलिन का है कि इसने बॉडी में एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना होता है। देन फर्दर is obstatin is are functioning similarly as leptin hormone. Obstatin opposite or oppose the actions of the ghrelin, which are growing hormones secreted and increase appetite. That is, the obstatin has opposite action to ghrelin on the food intake and regulate the energy balance exposure. कि इसको कुछ एपिटाइट कंट्रोल, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक, कुछ न्यूरल एफेरेंट्स हैं, कुछ साइटोकाइनिन हैं, कुछ ऐसे गैरलिन हो गया, कुछ पेप्टाइड कंटेंट है जो कि आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं। कुछ मेटाबोलाइट्स हैं, ग्लूकोकाइनेज कुछ हैं, कुछ ग्लूकोकीटोन्स हैं, हार्मोन्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि लेप्टिन, इंसुलिन और कोर्टिसोल, जो कि हमारी एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं कुछ। एंड एनर्जी बैलेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक एफेरेंस है, इसे पेरिफेरल सिस्टम कहते हैं, तो उसमें लेप्टिन आ जाता है और गैरलिन और पॉलीपेप्टाइड जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए। जो लेप्टिन है वो फैट सेल से डिपोसाइट सक्रीट होते हैं, जो गैरलिन है वो स्टमक से सक्रीट आउट होते हैं, जो पेप्टाइड्स हैं वो इलियम से, कोलोन से, इवन जो इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास सक्रीट आउट होती है। जो सेकंड वन जो सिस्टम है वो आर्कुएट न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस सिस्टम है। उसमें क्या है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है सीएनएस के थ्रू, ठीक है। वो जो सबसेट्स पे कंपोज होता है, POMC और CART, ये 2 सबसेट्स हैं। इसके अलावा ये न्यूरॉन है विच कंटेनिंग सम न्यूरोपेप्टाइड, इसमें AGRP है, इसे ग्लूटामेटेड पेप्टाइड भी कहते हैं। फर्दर इज फेरेंट सिस्टम। फेरेंट सिस्टम क्या है कि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, विच कैरी सिग्नल फ्रॉम द second order neuron of the hypothalamus to control food intake and energy expenditure। ये भी एनर्जी बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं। ये 3 सिस्टम है। देन फर्दर इज अ डायग्राम विच शो how afferents and other afferents and which is a peripheral system as well as arcuate nucleus as well as efferents can control over energy balance. Then neurohormonal circulate in hypothalamus है, ये वही जो PMS और POMC और CART का मैंने आपको बताया कि ये उसका किस तरह मैकेनिज्म होता है सारा। ये इसकी फर्दर डायग्राम है। Then वेगल एफरेंट न्यूरल सिग्नल है, जो वेगल एफरेंट है स्टिमुलेटेड बाय न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रेस रिसेप्टर फ्रॉम स्टमक आफ्टर फूड इंटेक। जब हम फूड इंटेक कर लेते हैं तो ये स्टमक से कुछ सिग्नल जनरेट करता है, जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक जाते हैं, जो हाइंड ब्रेन में, एंड वो डिक्रीज कर देते हैं फीडिंग को, और जो स्टमक जो इम्प्रेस है उसे और मेटाबॉलिज्म को वो इंक्रीज कर देते हैं, तो ये भी रेगुलेट करते हैं। एंड फर्दर
मोरल कंपोनेंट्स इन डिटेल, इसमें लेप्टिन है, वही एडिपोलेक्टिन है, साइटोकाइनेज है, इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 18, सम कीमोकाइनेज है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है जो कि हमारी डाइट हमारी एनर्जी बैलेंस में हेल्प करती है। गैरलिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो स्टमक से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा आर्क्यूएट न्यूक्लियस ऑफ जो हार्मोन्स है इसे रेगुलेट करता है। देन पेप्टाइड्स है जो इलियम से कोलोन से प्रोड्यूस होता है, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इंसुलिन एंड अमाइलिन। लेप्टिन क्या है? लेप्टिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि लेप्टिन क्या है कि लेप्टिन कंट्रोल करता है एपिटाइट को, ठीक है। जो इसके एक्शन है वो हाइपोथैलेमस पे हाइपोथैलेमिक फीटिंग है, वो एपिटाइट और सैटिस्फैक्टी को कंट्रोल करता है जो कि सेंटर्ड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, विच प्रोवाइड सिग्नल फॉर एनर्जी सफिशिएंसी। कि जब जिनकी बॉडी में अबंडेंट फैट होगा उसमें क्या होगा, लेप्टिन सिक्रीट होगा, ठीक है। वो रेगुलेट करेगा कि बॉडी का जो फैट है किस तरह रेगुलेट करना है। फर्दर इट्स रेगुलेटेड बाय इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। देन म्यूटेशन इन लेप्टिन है, ये इसमें ये कि MC4 आ रहे हैं, इसमें मिलानोकोर्टिन रिसेप्टर 4 है और सेकंड सिंगल ये न्यूरॉन डिसऑर्डर अवेलेबिलिटी म्यूटेशन आर मोर फ्रीक्वेंट काज ऑफ 5% मैसिव ओबेसिटी, ये भी ओबेसिटी काज करते हैं। नोस इसमें भी सैटिस्फैक्टी की फीलिंग नहीं होती इस हार्मोन की वजह से भी। देन डिपोनेक्टिन प्रोड्यूस मेनली बाय एडिपोसाइट्स, इसमें क्या लेवल आर लो, ओबेसिटी में इसका लेवल लो होता है क्योंकि ये भी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो इसी ओबेसिटी में लेवल लो होने की वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। और जो लीन मसल वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, उसमें इसी वजह से उनका प्रॉपर जो फैट्स है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, कट हो रहा होता है और उसमें प्रोटीन से ज़्यादा हो जाते हैं। Then adipose tissue, adipocytes also produce total nucleotide factors, interleukin 6 है, interleukin 1, interleukin 18, कुछ कीमोकाइनेज है और कुछ स्टेरॉइड्स हैं। Then गट हार्मोन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पेप्टाइड हार्मोन है। गट हार्मोन दीज आर द पोर्टर, मील, इनिशिएटर एंड टर्मिनेटर। गैरलिन है, गैरलिन का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड Y है, secreted by the endocrine cells of ileum colon and the level of polypeptides are found reduced in Prader-Willi syndrome है, ये एक डिजीज है, सिंड्रोम। And further myelin secreted along with insulin by pancreatic beta cells, it reduce the food intake and weight gain। इसमें भी क्या होता है कि ये बीटा सेल से secrete होती है इंसुलिन के साथ, जो ये क्या करती है फूड इंटेक को कम करती है और वेट गेन ज़्यादा करती है। then both polypeptides and myelin act centrally by stimulating POMC CRT neuron and inhibiting NPY AGRP in the hypothalamus and cause decrease in food intake. Then why the hard to maintain weight loss, who loss after dietary restriction, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमने इसको वेट को मैनेज किस तरह करना होता है। उसके अलावा ये इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कि वेट गेन होने से होती हैं, इसकी हम प्रॉपर डाइटरी इंटरवेंशन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।